Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will learn about how to get your first client on Upwork Law Students Guide in just 6 steps. So let's begin. Getting your first client on Upwork is the hardest part, not because there is no work, but because most beginners don't know what actually works. In this video, I'll show you exactly how to get your first client as a law student. If you already created your Upwork account, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था how to create a Upwork profile, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अगर आपने वो सब चीज़ें कर ली और अब आप अपने फर्स्ट क्लाइंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। Step 1 is your fix your profile. Before applying to jobs, your profile must look trustworthy. Keep it simple. Your headline should clearly say what you do: legal writer, case research, law student, drafting, legal blogging, and etc. In your description, don't write long paragraphs. Don't do it. Just write what you can do. How will you help the client? Remember, clients don't hire degrees, they hire solutions. जो आप उनको काम करके दोगे उन लोगों को उससे मतलब है। क्लाइंट्स को ये नहीं चाहिए कि आपने कौन सी डिग्री ली है, क्या किया है, कौन से कॉलेज से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। उनको ये है कि आप उनको क्या वर्क करके दोगे, वो उस पे बेस्ड आपको हायर करेंगे। Second is step 2, add strong samples. This is must. This is very important too. This is where most people fail. If you don't have experience, create your own samples. Write a case summary, legal article, simple contract draft, or legal blog, case commentary, or something like that. Because without proof, no client will trust you. अगर आप उनको दिखाओगे ही नहीं आप कैसा वर्क करते हो, कैसे आपके सैंपल्स हैं, तो वो लोग आपको हायर ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट ही नहीं आएगा कि आप उनका काम कर पाओगे या फिर नहीं। Third step is apply smartly. Don't apply to every job you see. Don't apply randomly. Choose jobs that match your skills, have clear requirements, are not too high paying. स्टार्टिंग में आपके फर्स्ट क्लाइंट के लिए आप हाई पेइंग की तरफ मत जाओ। आप इस तरफ जाओ जो आपकी स्किल्स से मैच करे, आपकी रिक्वायरमेंट्स और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स दोनों फिलफिल हो जाए। योर गोल इज नॉट मनी एट फर्स्ट, योर गोल इज योर फर्स्ट क्लाइंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ पैसों की तरफ मांगोगे स्टार्टिंग में ही तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको पहले क्लाइंट पे फोकस करना है, रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना है, अपनी स्किल्स पे फोकस करना है, अपनी प्रोफाइल पे फोकस करना है। And the step 4 is write a winning proposal. This is the most important step. Most beginners copy paste proposals and get ignored. जो आपको नहीं करना है, आपको ये नहीं कि आपने 10 जगह अप्लाई 10 जॉब्स में अप्लाई किया तो सेम ही प्रपोजल आप भेज रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप जिस क्लाइंट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके बैकग्राउंड सब आप चेक करिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे चेक करना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो भी आपके लिए वीडियो डाल दूंगी। Start with hi, I can help you with this, that, and legal research, contract draft, etc. For example, I read your requirement for a legal article on contract law. आप ये उसको दिखाइए कि आपने उसके बैकग्राउंड, उसकी रिक्वायरमेंट सब कुछ पढ़ लिए। Then briefly explain what you will do and end with I would be happy to work with you. Short, clear, no unnecessary lines. Just बात ऐसी लिखनी है आपको कि टाइम वेस्ट ना लगे क्लाइंट को और वो आपको हायर कर ले। शॉर्ट हो, क्लियर हो, क्रिस्प हो, ये नहीं आप लॉन्ग पैराग्राफ्स लेके भेज रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज बी कंसिस्टेंट। You won't get a client in one day. Apply to 5 to 10 jobs daily. Some days you will get no response and that's normal. आप अभी अपने फर्स्ट क्लाइंट को ढूंढ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज आपने अप्लाई करा आज ही आपको मिल गया, ऐसा नहीं होगा। आपको रोज अप्लाई करना पड़ेगा, रोज आपको भेजने पड़ेंगे, तब जाके आपको कोई फर्स्ट क्लाइंट मिलेगा। But if you stay consistent, you will get your first client. Your step 6, last but not least, is what to do after your first client. Once you get your first client, focus on quality. अगर आपके फर्स्ट क्लाइंट को ही आपके काम में क्वालिटी नहीं दिखी तो आपको रेफर नहीं करेगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा आप वर्क पर प्रोफाइल बनाने का।
डिलीवर ऑन टाइम, कम्युनिकेट प्रॉपरली। ये नहीं कि आप कोई भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। अगर क्लाइंट इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप भी इंग्लिश में बात करिए। अगर क्लाइंट फॉरेन लैंग्वेज का है तो आप उसको एक्सेप्ट मत करिए। जो आप लैंग्वेज आपको आती है आप उसी को एक्सेप्ट करिए और उसी में कम्युनिकेट करिए। अ गुड रिव्यू इज मोर वैल्यूएबल देन हाई पेमेंट। आप ये मत सोचिए कि ये क्लाइंट मुझे 2000 रुपीज दे रहा है, 10,000 रुपीज दे रहा है, 1000 रुपीज, ये आप मत सोचिए। आपको सबसे पहले क्वालिटी देखनी है, ना कि मनी। सो आप टाइमली डिलीवर करिए, अपना कंटेंट कम्युनिकेट करिए। जब तक आपको गुड रिव्यू नहीं मिलेगा ना, तब तक आपके पास और क्लाइंट्स नहीं आएंगे। बिकॉज वन गुड रिव्यू कैन ब्रिंग मैनी मोर क्लाइंट्स, बट वन बैड रिव्यू कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर प्रोफाइल वेरी नेगेटिवली। Getting your first client is difficult but not impossible. You just need the right approach and consistency. If you found this helpful, stay connected for more practical guides for law students. Thank you. Like, share, comment, and subscribe. Follow us on Telegram, WhatsApp, LinkedIn, and comment your problem related to any field of law like exams, syllabus, anything else, internships, experience. I will definitely give you a solution. Thank you.